everyone. Welcome to MedMind. So today we'll be starting with the topic diuretics from renal pharmacology. What are diuretics? These are the agents which increase the flow of urine. Now urine is produced by nephron. We all know the basic structure of nephron. This is the glomerulus. This is the Bowman's capsule. This is the proximal convoluted tubule. This is the descending limb of loop of Henle, ascending limb of loop of Henle, thick ascending limb of loop of Henle, distal convoluted tubule, and collecting duct. So just an overview of diuretics. We have 5 major types of diuretics, that is carbonic anhydrase inhibitors, loop diuretics, thiazide diuretics, potassium sparing diuretics, and osmotic diuretics. Carbonic anhydrase inhibitors work at the level of PCT, loop diuretics at the thick ascending limb of loop of Henle, thiazide diuretics at the level of DCT, potassium sparing diuretics at the level of collecting duct, osmotic diuretics throughout the nephron. Now how do they work? Carbonic anhydrase inhibitors reduce the reabsorption of bicarbonate. They block the sodium-potassium 2-chloride cotransporter. Thiazide diuretics inhibit sodium chloride cotransporter. Potassium-sparing diuretics inhibit sodium reabsorption and potassium excretion. Osmotic diuretics work by interfering directly with osmosis. Carbonic anhydrase inhibitors cause mild diuresis. Loop diuretics have the greatest diuretic effect. Thiazide diuretics cause moderate diuresis. Potassium sparing diuretics are weak diuresis. Now, carbonic anhydrase inhibitors include acetazolamide. Loop diuretics include bumetanide, ethicrinic acid, furosemide, torsemide. Thiazide diuretics include chlorothiazide, hydrochlorothiazide. Both of these are structurally similar sulfonamide derivatives. Others are chlorthalidone, metolazone, indapamide. Potassium sparing diuretics are amiloride, triamterene, spironolactone, allopurinol. And osmotic diuretics are mannitol and urea. We'll discuss each of them one by one. So coming to the carbonic anhydrase inhibitors, we know they work at the level of PCT. So this is the cross section shown at the level of PCT. These are the cells of PCT. This is the lumen, this is the interstitium, and this is the blood. Now what happens here is, यहाँ पे एक तो सोडियम प्रोटॉन एंटीपोड चल रहा है और एक सोडियम पोटेशियम ATPase पंप चल रहा है. ये सोडियम प्रोटॉन एंटीपोड क्या करता है? सोडियम को अंदर, प्रोटॉन को बाहर, और ये सोडियम फिर वाया सोडियम पोटेशियम ATPase पंप, सोडियम बाहर, पोटेशियम अंदर. अब ये जो प्रोटॉन बाहर गया था, ये बाइकार्बोनेट के साथ बाइंड करेगा और कार्बोनिक एसिड बना लेगा. ये कार्बोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस वाटर और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा. वाटर यहीं पे रह जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला जाएगा सेल के, और वहाँ पे भी वाटर तो है ही है. वाटर के साथ कंबाइन करके इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस ये बना लेगा H2CO3. अब ये वापस से ब्रेक करेगा इन H पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव. H पॉजिटिव वापस से सोडियम प्रोटॉन पंप में जाएगा, एंटीपोड में जाएगा, और ये जो बाइकार्बोनेट है ये ब्लड में चला जाएगा. ठीक है. अब अगर हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर दे देंगे तो व्हाट विल हैपन? इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स दिस विल गेट इनहिबिटेड. तो ना ही यहाँ से वाटर और CO2 बनेगा और ना ही यहाँ से H2CO3 बनेगा. सो व्हाट हैपन्स इज bicarbonate levels increases in the lumen because this is not getting used up. And here what happens is H2CO3 is not formed. अब अगर ये नहीं बनेगा तो प्रोटॉन भी नहीं बनेगा और बाइकार्बोनेट भी नहीं बनेगा. इससे प्रोटॉन नहीं बनेगा तो ये एंटीपोड नहीं चलेगा. एंटीपोड नहीं चलेगा तो सोडियम यहाँ से यूज़ नहीं होगा तो सोडियम के लेवल्स ल्यूमन में बढ़ जाएंगे. नाउ व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ
कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। अब सोडियम का एक्सचेंज क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सोडियम पोटेशियम ATPase पंप से हो रहा है, पोटेशियम की सिक्रीशन ज़्यादा हो रही है, जिसके वजह से ब्लड में पोटेशियम के लेवल्स कम हो रहे हैं, लीडिंग टू हाइपोकैलेमिया। व्हाट अदर थिंग हैपन्स इज, क्योंकि ये बाइकार्बोनेट अब ब्लड में नहीं जाएगा तो pH ब्लड की कम हो जाएगी, विच विल लीड टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस। Now what are the uses of carbonic anhydrase inhibitors? First is glaucoma. How? Carbonic anhydrase inhibitors, they lower intraocular pressure. Why? Because aqueous humor production decreases. Aqueous humor is rich in bicarbonate and bicarbonate की ज़्यादा secretion हो रही है, तो aqueous humor production कम हो जाएगी, जिसके वजह से intraocular pressure कम हो जाएगा and glaucoma can be prevented. To alkalinize the urine. अब क्योंकि यहाँ पे बाइकार्बोनेट यूरिन में बहुत ज़्यादा सिक्रीट होगा, तो यूरिन की pH would be increased, alkaline हो जाएगा. Other thing in which it can be used is epilepsy and mountain sickness. Now coming to the loop diuretics. We know loop diuretics work at the level of thick ascending limb of loop of Henle. So this is a cross section at thick ascending limb of loop of Henle. These are the cells of loop of Henle. This is the lumen, interstitium and blood. Now what happens here is, this is sodium potassium 2 chloride co-transporter. इससे क्या हो रहा है, सोडियम अंदर आ रहा है, पोटेशियम अंदर आ रहा है और 2 क्लोराइड अंदर आ रहा है. ये सोडियम गोज़ टू द सोडियम पोटेशियम ATPase पंप, जिससे सोडियम बाहर, पोटेशियम अंदर. नाउ दिस पोटेशियम अलॉन्ग विद दिस पोटेशियम वाया पोटेशियम चैनल्स गोज आउटसाइड. तो व्हाट हैपन्स इज, relatively positive charge generates on the outer side of membrane. To counteract this positive charge, magnesium and calcium goes in the blood. Now in the presence of loop diuretics, what will happen? This will be inhibited. तो सोडियम अंदर नहीं जाएगा, पोटेशियम अंदर नहीं जाएगा, क्लोराइड अंदर नहीं जाएगा, तो सोडियम के लेवल्स भी यहाँ पे बढ़ जाएंगे, पोटेशियम के भी बढ़ जाएंगे, क्लोराइड के भी बढ़ जाएंगे. और क्योंकि ये अंदर नहीं जाएंगे तो बाहर नहीं आएंगे पोटेशियम चैनल से, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट नहीं होगा, तो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए ब्लड में नहीं जाएंगे, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम का लॉस होगा. सो दैट्स इट. नाउ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दे ब्लॉक सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, जिसकी वजह से सोडियम वाटर का तो लॉस होगा ही, साथ में पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम का भी लॉस होगा. पोटेशियम लॉस मेजरली यहाँ से नहीं होता. नाउ व्हाट हैपन्स इज, क्योंकि यहाँ पे सोडियम के लेवल्स बढ़ गए हैं, तो DCT तक आते आते, दिस इज द सेल क्रॉस सेक्शन एट द लेवल ऑफ DCT, तो DCT तक आते आते सोडियम के लेवल्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि ये सारे सोडियम पोटेशियम ATPase पंप को बहुत ज़्यादा चलाते हैं, जिसकी वजह से पोटेशियम बहुत ज़्यादा सिक्रीट होने लग जाता है. This is where potassium loss takes place. Now what are the side effects of loop diuretics? First of all, electrolyte imbalance, obviously, because सोडियम भी ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, पोटेशियम भी, क्लोराइड भी, मैग्नीशियम ब्लड में नहीं जा रहा, कैल्शियम ब्लड में नहीं जा रहा. Now other thing what happens is acute hypovolemia. अब क्योंकि ब्लड की वॉल्यूम तो कम होगी ना, तो there is rapid and excessive reduction in blood volume which can lead to hypotension, shock and cardiac arrhythmias. Now other thing that happens is ototoxicity. What does that mean? It means damage to hearing, ototoxicity. अब ये कैसे होता है, जो लूप डायूरेटिक्स होते हैं वो इनहिबिट करते हैं सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को. अब ये सेम इनर ईयर में भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो उसमें भी उसको भी इनहिबिट करेंगे वहाँ पे, जिसकी वजह से हियरिंग को डैमेज होगा, विच इज़ नोन एज ऑटोटॉक्सिसिटी. नाउ अदर थिंग इज़ हाइपोकैल्सीमिया. अब हाइपोकैल्सीमिया कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा था, तो ये मैग्नीशियम कैल्शियम ब्लड में नहीं जा रहे थे, तो यहाँ पे मैग्नीशियम और कैल्शियम के लेवल्स कम हो जा रहे थे ब्लड में, विच मीन्स हाइपोकैल्सीमिया.
नाउ अदर थिंग इज़ हाइपर यूरिसीमिया. हाइपर यूरिसीमिया का मतलब ब्लड में यूरिक एसिड के लेवल्स बढ़ जाना. अब इसकी वजह से गाउट के सिम्टम्स वर्सन होंगे, क्योंकि यूरिक एसिड, गाउट में क्या होता है, यूरिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है ना, तो वर्सनिंग ऑफ गाउट सिम्टम्स. इथिक्राइनिक एसिड एंड फ्यूरोसिमाइड ये क्या करते हैं, दे कम्पीट विद ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिक एसिड एट द सेम साइट, तो उसकी सिक्रीशन को ब्लॉक कर देंगे, विच विल लीड टू हाइपर यूरिसीमिया. नाउ कमिंग टू द थायजाइड डायूरेटिक्स, ये ऑपरेट करते हैं एट द लेवल ऑफ DCT. ठीक है, तो दीज आर द सेल्स ऑफ DCT. दिस इज़ द ल्यूमेन, दिस इज़ द इंटरस्टिशियम एंड दिस इज़ द ब्लड. तो अब यहाँ पे क्या होता है, सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट चल रहा है, जो सोडियम को भी अंदर लेके आ रहा है, क्लोराइड को भी अंदर लेके आ रहा है, और दिस सोडियम वाया सोडियम पोटेशियम ATPase पंप चला जाता है ब्लड में, और ब्लड से पोटेशियम आ जाता है सेल के अंदर. दिस क्लोराइड वाया क्लोराइड चैनल्स गोज इनटू द ब्लड. तो व्हाट हैपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ थायजाइड डायूरेटिक्स, दिस सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर गेट्स इनहिबिटेड, जिसकी वजह से सोडियम के लेवल्स भी यहाँ पे बढ़ जाएंगे, क्लोराइड के भी लेवल्स यहाँ पे बढ़ जाएंगे, और इनकी रीएब्जॉर्प्शन कम हो गई तो यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगी. तो अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं थायजाइड डायूरेटिक्स के. सबसे मेजर जो साइड इफ़ेक्ट है दैट इज़ हाइपोकैलीमिया. दिस इज़ द मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट. लो डोजेस पे तो इतना इफ़ेक्ट नहीं होता, बट एट हायर डोजेस इट कैन लीड टू हाइपोकैलीमिया. Now hyperuricemia, it also interferes with the uric acid transport, which leads to worsening of gout. Now hyperglycemia and hyperlipidemia, it decreases the insulin secretion and sensitivity, due to which hepatic glucose production increases, leading to hyperglycemia and hyperlipidemia. Next is hypercalcemia, that is levels of calcium in blood increases. अब ये दो रीजंस की वजह से हो सकता है, एक तो जो PCT में हो रहा है, एक जो DCT में हो रहा है. अब DCT में क्या हो रहा है, यहाँ पे सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर इन्वॉल्व हो जाता है. अब सेल में सोडियम कम है थायजाइड के केस में, सोडियम कम होने की वजह से ये एक्सचेंजर चलता है और बाहर से सोडियम अंदर आता है और यहाँ से कैल्शियम ब्लड में चला जाता है, विच लीड्स टू हाइपरकैल्सीमिया. अब PCT में क्या हो रहा है, थायजाइड इंड्यूस्ड वॉल्यूम डिप्लीशन हो रही है, जिसकी वजह से कंपनसेटरी सोडियम रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है. अब ये सोडियम रीएब्जॉर्प्शन की वजह से इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट बन जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम की भी पैसिव रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, which work at the level of collecting duct or collecting tubule. So this is the cross section at the level of collecting tubule. These are the cells of collecting tubule. This is the lumen, interstitium and blood. So what happens here is sodium channel से sodium अंदर आता है, and this sodium via ATPase pump gets exchanged by potassium. Sodium बाहर, potassium अंदर, और ये पोटेशियम वाया पोटेशियम चैनल्स बाहर चला जाता है, जिसको काउंटरैक्ट करने के लिए क्लोराइड अंदर चली जाती है. अब पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स में क्या होता है, दो मैकेनिज़्म है इसके. एक तो ये सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर दे, दूसरा ये एल्डोस्टेरॉन का एंटागोनाइज़र की तरह एक्ट करे. अब अगर सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करेगा तो सोडियम अंदर नहीं आएगी, सोडियम अंदर नहीं आएगी तो सोडियम पोटेशियम ATPase पंप कम चलेगा, जिसकी वजह से एक्सचेंज इनका कम होगा और पोटेशियम के लेवल्स ब्लड में बढ़ जाएंगे. दैट इज़ इट विल लीड टू रिटेंशन ऑफ पोटेशियम. अब अगर ये एल्डोस्टेरॉन एंटागोनाइज़र की तरह एक्ट करेगा तो एल्डोस्टेरॉन के इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पे बाइंड करने के लिए कम्पीट करेगा, जिसकी वजह से प्रोटीन्स की सिंथेसिस कम हो जाएगी जो सोडियम चैनल्स को एक्टिवेट करते हैं. अब अगर वो प्रोटीन्स नहीं बनेंगे जो उनको एक्टिवेट करते हैं तो ये चैनल्स नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से सोडियम पोटेशियम ATPase के नंबर कम हो जाएगा और पोटेशियम की रिटेंशन हो जाएगी. तो नाउ व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दीज पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स.
फर्स्ट इज़ हाइपरकेलेमिया, ऑब्वियसली बिकॉज पोटेशियम की रिटेंशन हो रही है तो हाइपरकेलेमिया तो हो ही रहा है. सेकेंड थिंग इज़ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ इन फीमेल्स एंड गायनाइकोमेस्टिया इन मेल्स. अब ये क्यों होता है? स्पाइरोनोलैक्टोन विच इज़ अ पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक, इसका केमिकल स्ट्रक्चर रिजेंबल्स नेचुरल स्टेरॉयड हॉर्मोन्स. तो दे स्टिमुलेट द रिसेप्टर्स फॉर टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्ट्रॉन विच लीड्स टू गायनाइकोमेस्टिया इन males and menstrual irregularities in females. Now interaction. अगर ACE inhibitors और spironolactone को एक साथ दे दिया जाए तो it would result in dangerous hyperkalemia. Now next we have is osmotic diuretics. Osmotic diuretics are very water soluble, that is they are hydrophilic. They are filtered from the glomerulus, but इनकी reabsorption is very limited. Why? Because of their large molecular size. The osmolarity of tubular fluid increases, due to which water reabsorption decreases. Now this is an important point to note here, that they are not very effective in treating edema. Edema due to sodium retention. Why? Because ये water excretion को तो बढ़ा रहे हैं, but sodium excretion को तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना. Now they uses. They are used for reducing intracranial pressure. They promote urinary excretion of toxic substances. They promote urine production in patients with acute kidney failure. Now the side effects. They causes significant fluid changes. Volume overload हो सकता है, dehydration हो सकती है, electrolyte imbalance. Not because कि ये electrolytes को कुछ कर रहे हैं, but because क्योंकि water के level को बहुत ज़्यादा fluctuate करा रहे हैं, तो इसलिए electrolyte imbalance हो सकता है. Other thing is headache, nausea and vomiting. Now this is just a crux of what we did just right now. Majorly it is given between three of these, that is loop diuretics, thiazide diuretics and potassium sparing diuretics. If you want any free notes or PDF of any medical book, please WhatsApp us on the given number in the description box. Please make sure to subscribe for more such content. Thank you.